Good morning, students. So today we are going to start our next topic of chapter 4, key elements of a democratic government. And this is our lecture number 2. Let's start. So actually, student, we have already discussed about the key element of a democratic government. This is our chapter name. And in our previous lecture, we have read a story of South Africa. We have read a story of South Africa, actually in which we studied that South Africa is a country of several races, including African American people who belong to South Africa, the whites who came there to settle Indians who came as laborers and traders, and so on. So earlier the country was governed by apartheid laws. And apartheid means separation on the basis of races. Okay, okay. And African people were divided into white, African American, Indian, and other races. According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, live near each other, or even use common facilities. Okay, and the African National Congress, a group of people led the struggle against the apartheid, and their most well-known leader, Nelson Mandela, fought the apartheid system for several years. Finally, they succeeded, and in 1994, South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. After that, we studied about the participation. This was our next topic of this chapter, participation. So in which we studied about why do we have regular elections, and it was already discussed in an earlier chapter that people make decision in a democracy. People elect leaders to represent them via election, and these leaders can also take decisions on the behalf of the people. And it is believed that these representatives will keep in mind the voices and the interest of the people. Every government is elected for a fixed period. In India, it is for 5 years, and every government that is elected is allowed to stay in power for only that period. However, if they want to continue to be in power, then they will have to be re-elected by the people. So in this way, regular elections limit the power of the government. Okay, so now today our next topic is other ways of participating. So student, actually elections are held once every 5 years. So besides voting, people can participate in the process of government by taking an interest in its operation and criticizing it when required. Okay, so other ways of participating, actually elections are usually held once in a 5 years. Okay, now you know that कि इलेक्शन जो है वो क्या होते हैं 5 साल में एक बार जो है इलेक्शंस किए जाते हैं. एंड बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट. तो स्टूडेंट केवल आपके लिए जो हम लोग ये बात करते हैं कि इलेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट जो है अपना क्या दिखाते हैं, अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं. तो सिर्फ इलेक्शन के थ्रू ही वो अपनी जो है इलेक्शन, सिर्फ एक इलेक्शन ही एक ऐसा वे नहीं है जिसके जरिए वो क्या करें, वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोसेस के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर. ठीक है, और भी दूसरे बहुत से तरीके हैं जिनके जरिए वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं.
और वही पार्टिसिपेशन हमने देख ली है कि और वो दूसरे कौन से ऐसे वेज हैं जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। So people participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing at when required. एक्चुअली स्टूडेंट एक और स्टूडेंट वो क्या कर सकते हैं, जो स्टूडेंट है मतलब जो हमारी जो जनता है, पीपल है, वो कैसे कर सकते हैं। अब देखिए वो कह रहे हैं कि पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट जो भी काम करती है उनके कामों में इंटरेस्ट लेकर, ठीक है, वो ये देखें कि जब गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है तो किस तरीके से वो काम कर रही है, ठीक है, तो वो उनका क्या देख सकती है, उन तरीकों को देख सकती है वो कि वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं। तो लोग गवर्नमेंट के फंक्शंस में इंटरेस्ट लेकर और उसकी को उसको क्रिटिसाइज करके, मान लो अगर कोई ऐसे काम है जो उनके अकॉर्डिंग सही नहीं लग रहा है तो वो उनको क्रिटिसाइज भी कर सकती है, ठीक है, तो उनको क्रिटिसाइज करके भी अपनी पार्टिसिपेशन को दिखा सकती है। इन अगस्त 2005 when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply. अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि अगस्त 2005 में जब एक गवर्नमेंट ने क्या करा, एक गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस को यानी उनके किराए को बढ़ा दिया था, तो लोगों ने अपना अपना जो विरोध था वो उसके प्रति जताया कि भाई वो क्या किया जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं, तो लोगों ने अपने डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस किया, ठीक है, और बहुत ही शार्पली यानी तीखे रूप से उन्होंने अपने इस डिसअप्रूवल को कि हम इस चीज को नहीं मानते, उन्होंने अपने इन व्यूज को एक्सप्रेस किया। सो दे टुक आउट रैलीज एंड आल्सो ऑर्गेनाइज अ सिग्नेचर कैंपेन। उन्होंने लोगों ने क्या किया, लोगों ने रैलीज निकाली और सिग्नेचर कैंपेन यानी जैसे हस्ताक्षर अभियान होता है ना कि सब एक वो लिख दिया एप्लीकेशन, उस पर सबके साइन हो गए, तो एक सिग्नेचर कैंपेन भी उन्होंने चलाए। एंड द गवर्नमेंट ट्राइड टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन एंड विड्रू द इंक्रीज। अब गवर्नमेंट ने अपने डिसीजन के बचाव के लिए बहुत सारे तर्क दिए, ठीक है, लोगों को समझाने की बड़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन फाइनली उन्हें गवर्नमेंट को लोगों की डिमांड को मानना पड़ा और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के जो प्राइसेस बढ़ाए थे उन्हें वापस लेना पड़ा, उन्हें कम करना पड़ा। सो द गवर्नमेंट had to change its decision, उनको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। क्यों चेंज करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल होती है, और अगर लोगों को उनके किसी डिसीजन कोई डिसीजन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर सकती हैं और गवर्नमेंट को अपने डिसीजन को चेंज करने के लिए कंपेल भी कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, now the next is there are many ways in which people express their views and make government understand what actions they should take. अब ऐसे और भी बहुत से ऐसे वे हैं जिनके जरिए लोग अपने ओपिनियन को, ठीक है, अपने व्यूज को वो एक्सप्रेस कर सकते हैं और गवर्नमेंट को ये समझा सकते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, ठीक है, उसे कौन से एक्शन जो है उस गवर्नमेंट को करने चाहिए, तो इस तरीके से वो समझा सकती है। बहुत से दूसरे ऐसे भी हैं। सो दीज इंक्लूड, और वो कौन से, जैसे दीज इंक्लूड धरना, रैलीज, स्ट्राइक्स, सिग्नेचर कैंपेन एक्सेट्रा। जैसे वो क्या कर सकती हैं, वो धरने देती हैं, आपने देखा होगा कई बार लोग धरने में बैठ जाते हैं, रैलीज निकालते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, सिग्नेचर कैंपेन चलाते हैं। So things that are unfair and unjust are also brought brought forward. तो इनके जरिए जो भी बातें उन्हें गलत लगती हैं, रोंग लगती हैं,
ठीक है, और अनजस्ट लगती है, अनफेयर लग रही है और अनजस्ट लग रही है उन्हें, तो उन्हें सामने लाया जाता है इसके थ्रू। ठीक है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड टीवी आल्सो प्ले अ रोल ऑफ डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं और भी बहुत से तरीके हैं जिसके जरिए वो अपनी जो विरोध को, अपनी बातों को समझा सकती है गवर्नमेंट को, जैसे न्यूज़पेपर के जरिए, मैगजीन्स, टीवी। ठीक है, ये एक तरीके की हमारी मीडिया है, ठीक है, जो जिसके थ्रू जो है ना, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सब, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड टीवी। ये भी एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको डिस्कस करने में, उनके इन और जो भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट इश्यूज हैं उनको डिस्कस करने के में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Now, while it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all sections of the people are actually able to do so. अब ये चीज तो ट्रू है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रू है कि जो डेमोक्रेसी है वो लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका देती है। ठीक है, पार्टिसिपेट करने का उनको एक मौका मिल रहा है, बट इसके अलावा एक और बात सच है, हम उसको भी डिनाई नहीं कर सकते, कि जैसे कि ये बात सच है कि सभी लोग जो हैं, मतलब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनको मौका मिलता है, तो वही ये भी ट्रू है कि सभी सेक्शंस, ठीक है, सभी ग्रुपों, जो ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल जो हैं, सभी वर्गों के लोग जो हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, उनको ये मौका नहीं मिल पाता है। ये भी एक बहुत बड़ा सच है। Another way of people to participate is by organizing themselves into social movements that seek to challenge the government and its functioning. अब लोगों के लिए पार्टिसिपेशन का एक और वे है, एक और वे यह भी है कि वो क्या करते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, आंदोलन आंदोलन करें, वो मूवमेंट करें, जो गवर्नमेंट और उसके काम करने के जो तरीके हैं उनको वो चैलेंज दे। ये भी एक वे है। जैसे मेंबर्स ऑफ द मिनोरिटी कम्युनिटीज, जो मिनोरिटी कम्युनिटीज के मेंबर होते हैं, जैसे मिनोरिटी कम्युनिटीज के मेंबर हैं, जैसे दलित हो गए, आदिवासी, दलित, आदिवासी, वीमेन एंड अदर्स आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। ये कुछ ऐसे सेक्शन हैं, जैसे कि मिनोरिटीज कम्युनिटी के जो मेंबर होते हैं, या फिर हमारे दलित लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, हमारी जो फीमेल है, जो वीमेन है वो है, और ऐसे ही दूसरे जो बैकवर्ड रीजन के लोग होते हैं, ठीक है, ओबीसी वाले होते हैं, एससी एसटीज। तो ये लोग जो हैं, ये इस तरह के मूवमेंट करके भी अपने पार्टिसिपेशन को शो कर सकते हैं, अपना पार्टिसिपेशन अक्सर जो है वो इसी तरीके से अपने पार्टिसिपेशन को शो करते हैं। ओके, now the next is, if a country's people are alert and interested in how the country is run, so the democratic character of the government of that country will be stronger. अगर एक कंट्री के लोग क्या हैं, अलर्ट हैं, और इस बारे में इंटरेस्ट लेते हैं कि कंट्री कैसे चलाई जा रही है, कैसे चलाया जा सकता है एक देश को, तो उस कंट्री की गवर्नमेंट का, उस कंट्री की गवर्नमेंट का क्या है, जो डेमोक्रेटिक करैक्टर है, ठीक है, डेमोक्रेटिक करैक्टर है, वो और भी स्ट्रोंग होता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट ये लाइन, कि अगर किसी कंट्री के लोग अवेयर हैं, अलर्ट हैं, और इंटरेस्ट लेते हैं कि एक कंट्री कैसे चलाई जाती है, तो उस कंट्री की गवर्नमेंट भी, जो गवर्नमेंट का जो डेमोक्रेटिक करैक्टर है वो और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। Okay, so the next time we see a rally winding through the streets of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it, and what they are protesting about. तो देखिए, आप ऊपर की जो आपने लाइन करी, तो वहां से क्या समझ में आता है आपको,
कि भाई आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर मान लो गवर्नमेंट कैसे हमारी कंट्री चलती है, उसके अंदर गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, अब कोई इशू उठ रहे हैं उसके लिए मान लो लोग रैलीज निकाल रहे हैं, कोई मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसा कुछ नजर आता है तो आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन सा ऐसा इशू है जिसको लेकर ये सब किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर अगर आप सबको, मुझे भी इवन, अगर हम सबको अपनी सिटी में, अपने टाउन में या अपने विलेज की स्ट्रीट में कोई रैली गुजरती हुई दिखे, वहां से पास होती हुई दिखे, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वहां पर एक क्षण के लिए, एक टाइम के लिए हमें वहां पर पोज कर लेना चाहिए, यानी अपने आप को रोक लेना चाहिए, और ये हम पता करें कि जो रैलीज हैं वो किस लिए निकाली गई हैं, लिए किस लिए निकाली जा रही है ये रैली। सो दिस विल हेल्प टू गिव अस अ सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क। तो जब हमें ये पता होगा कि ये रैली किस लिए निकाली जा रही है, तो उसमें पार्टिसिपेशन जो है, लेने वाले लोग कौन है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस रैली में, अगर हमें ये पता चले कि उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग कौन है और वो किस इशू पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इससे ये हमें समझने में हेल्प मिलेगी कि हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है। आई थिंक स्टूडेंट इट इज क्लियर नाउ, ओके, कि हम लोगों को अपन, जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो उस कंट्री के अंदर अगर कोई भी इश्यूज चल रहे हैं या कोई भी मुद्दा चल रहा है या कुछ भी काम हो रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या ऐसा क्या हुआ है या ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। ओके, सो हमें आंखें बंद करके ही, ये नहीं है कि आंखें बंद करके हम निकल जाए वहां से। तो नेक्स्ट टॉपिक इज नीड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। ये जो कन्फ्लिक्ट्स मतलब स्टूडेंट, कन्फ्लिक्ट्स मीन्स विवाद। जैसे आपका भी कई बार आप देखो कि आप दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपस में कोई भी ऐसी बात होती है जिसके ऊपर आप दो बच्चों के बीच में झगड़ा हो जाता है, या आप लोग क्या करते हो, एक दूसरे के साथ बहस करने लग जाते हो, तो एक तरीके से कन्फ्लिक्ट्स हो जाता है। यहाँ पर एक हमारी कंट्री में कन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या है, देखो 3 वर्ड्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स, वायलेंस एंड प्रॉब्लम्स। ओके, सो अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या कन्फ्लिक्ट कैसे हुआ कि आप यू नो दैट कि आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, एंड यहाँ इस कंट्री में क्या होते हैं, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रीजन के, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग जो हैं वो हमारी कंट्री में रहते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। कोई क्या कर रहा है, कोई बंगाली बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई हरियाणवी बोलता है, तो जब अलग अलग लैंग्वेजेस सब बोलते हैं, ठीक है, तो उनका कई बार आप देखते हो किसी भी इशू पर उनका आपस में क्या हो सकती है, किसी भी इशू के ऊपर आपस में वो एक दूसरे से बहस कर सकते हैं, तो एक तरीके से वो कंफ्लिक्ट हो गया। और अगर मान लो ये कंफ्लिक्ट कंटिन्यूसली अगर ये बढ़ता चला जाए तो ये वॉयलेंस का एक फॉर्म ले लेता है, यानी वहां पर हिंसा होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर नीड टू रिजोल्व कंफ्लिक्ट, तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी कोई कंफ्लिक्ट हो तो इनको रिजोल्व करना, यानी उसका सोल्यूशन निकालना, उसको खत्म करने की बहुत जरूरत होती है। तो कौन इन कन्फ्लिक्ट्स को खत्म करेगा अगर किसी कंट्री में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो जैसे आपने स्टोरी पीछे पढ़ी, देखिए आपने नीचे पीछे स्टोरी पढ़ी ना, माया की स्टोरी में आपने देखा था, तो इन माया स्टोरी यू हैव रेड अबाउट हाउ conflicts can often lead to violence and death because of one group decided that it all right to use force to prevent the other group from protesting। जैसे हमने स्टार्टिंग में जो स्टोरी पढ़ी थी माया की स्टोरी में, हमने वहां देखा था कि जो पीटर है, आपके पास जो कौन उसका बच्चे का आपका क्या नाम था, हेक्टर पीटरसन, ठीक है, सो हेक्टर पीटरसन और उसके साथ जितने भी दूसरे स्टूडेंट्स थे जो उसी की ही, जो सब क्या बोलते थे, लैंग्वेज, जिरू लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है, लेकिन जो अफ्रीकन लोग थे वहां पर, व्हाइट लोग थे, वो अपनी अफ्रीकन लैंग्वेजेस जो है वो उनके ऊपर क्या कर रहे थे, थोप रहे थे, लेकिन वो इस बात से एग्री नहीं थे, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट क्या किया, उनका कंफ्लिक्ट हो गया आपस में, ठीक है, वो जुलू अपनी जुलू लैंग्वेज को लर्न करना चाहते थे, जबकि उनको वो क्या किया जा रहा था, उनको अफ्रीकन लैंग्वेजेस सीखने के लिए कहा जा रहा था। तो उससे क्या हुआ, उससे उनके बीच में, उन दो ग्रुप्स के बीच में, अलग अलग लैंग्वेजेस को लेकर दोनों ग्रुप के बीच में क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट हो गए। अब इस कन्फ्लिक्ट ने लास्ट में क्या करा, वॉयलेंस का रूप ले लिया। क्यों लिया वॉयलेंस का रूप, क्योंकि उस टाइम पर
जो साउथ अफ्रीका था उस टाइम पे वहां वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी, तो वहां पर किसी को ये राइट नहीं था कि वो किसी चीज के अगेंस्ट, गवर्नमेंट का कोई डिसीजन है उसके अगेंस्ट वो क्या कर सके, अपने जो है व्यूज दे सके या उसके अगेंस्ट बोल सके। तो उससे क्या हुआ, उससे उन्होंने जब कन्फ्लिक्ट हुए उनके आपस में और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो फिर उनके ऊपर क्या की गई, गोलियां चलाई गई और उसमें वॉयलेंस हुआ, जिसमें हेक्टर पीटरसन को गोली लगी और उसकी डेथ हो गई। तो इस तरीके से जब कन्फ्लिक्ट्स होते हैं दो लोगों के बीच में या किसी भी मुद्दे को लेकर, किन्हीं भी दो के चीजों के बीच में जब कन्फ्लिक्ट्स होता है, तो वो एक, अगर एक डेमोक्रेटिक, मान लो हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है और वहां पर कोई भी उसको रिसोल्व करने वाला नहीं है, तो ये कन्फ्लिक्ट्स आगे जाके वॉयलेंस का के फॉर्म भी ले सकते हैं, जैसे हमने साउथ अफ्रीका में स्टार्टिंग में स्टोरी में पढ़ा। ओके, क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ कि माया स्टोरी में हमने जैसे पढ़ा कि हाउ कन्फ्लिक्ट कैन ऑफन लीड टू वॉयलेंस, कैसे उसने उस कन्फ्लिक्ट ने वॉयलेंस का रूप धारण किया, एंड डेथ, जिसमें हमने देखा हेक्टर पीटरसन की डेथ हो गई थी बिकॉज वन ग्रुप decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting। क्योंकि यहाँ पर ऐसा इसीलिए किस रीजन से हुआ था, जो आपको पता है कि ऐसा किस रीजन से हुआ था, क्योंकि पहले ही ग्रुप में ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो फोर्सफुली जो है जो भी कुछ है वो दूसरे ग्रुप के ऊपर क्या कर सकते हैं, चीजों को थोप सकते हैं, ठीक है, उनसे अपनी चीजें मनवा सकते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि एक ग्रुप ये मान लेता है कि जो दूसरा ग्रुप है उसको प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए फोर्स का यूज करना ही क्या है, सही है, इसीलिए ऐसा होता है। Now conflicts occur when people of different cultures, religions, reasons or economic backgrounds do not get along with each other, or when some among them feel they are being discriminated against। और ये कन्फ्लिक्ट तभी अराइज होते हैं जब अलग अलग कल्चर के, ठीक है, रिलीजन के, रीजन रीजन या फिर जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के जो होते हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, ठीक है, तो तभी इस तरह के कन्फ्लिक्ट होते हैं। और तब ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है कि जब कुछ लोगों को ये फील हो कि दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कि उनके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सो पीपल मे यूज वॉयलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस। तो लोग अपने अपने इन कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए किसका यूज करते हैं, वो वॉयलेंस का जो मेथड है, वॉयलेंस का जो तरीका है, वो भी वो अपनाते हैं। तो दिस लीड टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर्स लिविंग इन एन एरिया। तो जब अगर इस तरह का वॉयलेंस हो जाए तो स्टूडेंट क्या होगा उससे, जब ऐसे वॉयलेंस हो जाता है ना कि लोग मरने लग जाते हैं, ठीक है, किसी ने किसी को गोली मार दी, किसी ने तलवार चला दी, तो जिससे क्या होगा, जो दूसरे लोग होते हैं उनमें डर है और उनमें एक किस चीज क्या चीज होती है, मतलब वो फियर और एक टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है, एक फियर आ जाता है उनके अंदर, एक डर आ जाता है, वो अपने आप को सुरक्षित समझने लगते हैं। सो द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट ही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो अगर कुछ तरह इस तरह के कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो उसको वो रिसॉल्व करे, उसका सलूशन निकाले, तो ये गवर्नमेंट की ही ड्यूटी होती है। डियर स्टूडेंट्स, now the next is, let's read about some of the conflicts in our society and the role of the government in resolving them। तो अब हम कुछ एक यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स हमारी सोसाइटी में ऐसे ही कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे, एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रिसॉल्विंग देम, और ये देखेंगे कि गवर्नमेंट ने किस तरह से इन प्रॉब्लम को कैसे रिसॉल्व किया।
Okay, so tomorrow we will discuss our next topic. Okay, that's all for today. Have a good